Let's begin with nuclear magnetic resonance. ठीक है, जो हमने थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, NMR. So it's nuclear magnetic resonance. And I told you about the basic idea that about this was that all your nucleons, they have magnetic spins. So whenever you have it, मतलब एक तो हम चार्ज पढ़ते हैं सारी जिंदगी, ठीक है. So it's not just charge. There is a magnetic spin involved as well. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ. नेट का आई थिंक थोड़ा सा इशू. So they have a magnetic spin, which means they have a magnetic field. They have a north pole and have a south pole. ठीक है, जिसमें magnetic field lines होती हैं. And all nucleons are paired. So in that case, I told you कि if they're paired, one would be, let's say, उसकी magnetic field is pointing upwards, the other one next door is pointing downwards. Then that means there is not going to be any net magnetic field. So and they're paired oppositely. So no net magnetic spin or dipole. So the nucleus would not be exhibiting any magnetic field if you have even number of nucleons. So even nucleons, even numbered nucleons, that means no net spin or dipole. So the thing is, dipoles are created when you have an odd number of nucleons. Okay, that's the first key point. Okay, when you have odd numbered nucleons in an atom, so the nucleus will have has an overall magnetic dipole. And I had explained that most atoms have paired nucleons. Okay, most of the common elements like carbon, oxygen, nitrogen, etc. They are mostly paired because they have even number of nucleons. 14 total 14 protons plus neutrons होते हैं. नाइट्रोजन के अंदर, कार्बन के अंदर 12 होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 16 होते हैं. So most of the time they are paired. So hydrogen is one example and one key example कि हम हाइड्रोजन को स्टडी क्यों करते हैं. हाइड्रोजन को इसलिए स्टडी करते हैं कि hydrogen is it's present everywhere in organic molecules. So if you know the properties of hydrogen, you can figure out a lot of things about a particular molecule or the structure or shape of the molecule. So it only has one proton. So that means that if it has a nucleus, then that one proton, its magnetic field might be pointing in any random direction. ठीक है, it's going to be acting like a tiny magnet. छोटा सा magnet होगा like a compass needle which would be pointing in different directions. So now imagine a hydrogen proton always as a tiny magnet because it has a net magnetic field. ठीक है, ये हमने कल हमने लास्ट चीज पढ़ी थी. अब इसमें क्या, how do you make use of that? The way you make use of this is, let's think of any molecule. ठीक है, let's think of any molecule. uh, let's think of ethanoic acid. Ethanoic acid has two carbon atoms. The board is hanging. मैं एक second यहाँ
ड्रॉ कर लो, जस्ट अ सेकेंड, ये लोड हो जाएगा. अच्छा, so think of ethanoic acid. It has double bond O and OH. And it has these hydrogen protons. You can now focus on the molecule. Now, most of the atoms, I mean the carbon and oxygen atoms in the middle, their nucleons are paired. So these carbon, oxygen, and I mean these two carbon atoms, the oxygen atom over here, they're not going to show any magnetic field. Okay, nucleus where all the magnetic spins are paired and they're cancelling each other out. What's going to happen now is that these hydrogen protons, they would be acting as tiny magnets and their magnetic fields would be pointing in random directions, completely random directions. For example, this hydrogen proton, its north pole might be pointing to the top. The other one, its north pole might be pointing downwards. So all of them, they would be exhibiting a magnetic field. There would be magnetic field lines coming out of them. So completely randomly, these hydrogen protons, they are going to be acting as these tiny magnets. You can go highlight करना. Now what you do is in NMR, what you do is if you look at an MRI scanner, उसके अंदर ना an MRI scanner is a big magnet. What you do is you place this molecule into this huge magnet. That would be known as the external magnetic field. So you create this huge electromagnet, and there is your north pole, and on one side there is your south pole. So what you've done is कि आपने वो जो छोटे छोटे magnets नहीं है hydrogen के protons, and the entire molecule has been placed inside a, a very strong magnetic field. And these strong magnetic field lines, they would be going from north to south. That would be known as your external magnetic field. और आप इस magnetic field को ना control कर रहे हो. But you can increase the strength of this magnetic field, you could decrease the strength of this magnetic field. Now, what's going to happen to these hydrogen protons? कंपस की नीडल किधर पॉइंट करती है? कंपस की नीडल अलाइंड होती है अर्थ की क्रस्ट के साथ, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो all these hydrogen protons are going to align because they're very tiny. Think of them as very tiny magnets. So they're going to get aligned with the external magnetic field. They would also start pointing in the direction of this external magnetic field, all of them. So all of them, or the end whether be hydrogen proton, it's pointing in the other direction, it would start pointing in the direction of the external magnetic field. ठीक है, जैसा मैग्नेट्स बिहेव करते हैं, मैग्नेट्स इसी तरह बिहेव करते हैं कि आप एक पावरफुल मैग्नेट रखो तो उसका जो नॉर्थ पोल है उसके साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा. ठीक है, सो इज दिस फर्स्ट पार्ट क्लियर? फजान क्लियर है? मूसा क्लियर है? अरीबा? Yes, sir. अच्छा, सो दिस थिंग, ये जो पिक्चर बनी हुई है, दिस इज नोन एज द अलाइंड स्पिन. ठीक है, दिस थिंग ओवर हियर इज नोन एज योर अलाइंड spin. An aligned spin is जो बाय डिफॉल्ट मतलब आप कंपास की नीडल की एग्जांपल ले लो, वो अलाइंड होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ. दैट्स आल्सो नोन एज योर लो एनर्जी स्टेट. व्हाई इज इट द लो एनर्जी स्टेट? कि assume कि the hydrogen proton has no energy, तो वो जो बाहर की magnetic field है वो उसको फोर्स करेगी उस डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए, तो वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. I mean your compass needle is basically in its low energy state जब वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी. अगर उस कंपास नीडल को ना if you want to make a point in another direction, तो क्या करना होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको फोर्स करके पकड़ के उसको दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है, सो that would be your high energy state. So this is your aligned spin. Now, to make these protons point in the other direction, you would have to give it a lot of energy.
ठीक है. So these hydrogen protons have to be made very energetic. Only then would it be possible for them कि वो इतने energetic होंगे कि they would have enough energy to actually oppose the external magnetic field. And there are actually just two states. ठीक है, hydrogen protons, they always exist in two states. One is they're either going to be aligned or they're going to be opposing. The opposing spin is the high energy state because it's difficult to maintain. They need lots of energy to actually go in the opposite direction. मतलब इमेजिन करो आपने दो मैग्नेट्स को ना नॉर्थ उनके दोनों नॉर्थ पोल्स आमने सामने रखने हैं तो आपको उनको पकड़ के बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके the two north poles could be pointed in the same direction. So where does this energy come from? These hydrogen protons, they absorb energy from radio waves or radio frequencies. So there's a radio frequency transmitter that's making these hydrogen protons energetic. And one by one, these hydrogen protons, they gain energy and they shift to the high energy state, which is they become energetic. And when they become energetic, so they go into opposing spin, all of them. But that can only happen if they are energetic in the first place. If they're not energetic, तो वो align हो जाएंगे. So there are two states that are existing. And और quantum level के ऊपर ना हमेशा states होती हैं, they're very unique. मतलब macro level के ऊपर the magnet could point in any direction. Quantum level के अंदर particles behave in very specific states or energy levels. So it's either going to be aligned, which is our low energy state, or they're going to absorb energy and they're going to go into opposing spin. And this is going to be your high energy state. तो opposing spin maintain करना that's kind of difficult. जब तक energy मिलेगी तब तक वो state exist करेगी, otherwise it's not easy to go into opposing spin. So this is resonance. Okay, the hydrogen protons are resonating between two states. ठीक है, they're in the low energy state, which is when they are pointing, when they are aligned with the external magnetic field. जैसा आपकी कंपास की नीडल बाय डिफॉल्ट मैग्नेट की जो फील्ड होती जो अर्थ की फील्ड होती है उसके साथ अलाइंड होती है. ठीक है, that's the by default state. Or if you make it energetic, so it could go into the opposing spin. ठीक है, and the only way it's possible for the hydrogen proton to oppose the external magnetic field is when it's really really energetic. So that's your high energy state. So ये concept clear है resonance का कि the hydrogen protons are basically resonating between two states, and especially when they're put in an external magnetic field. Hasn't clear, Rehan, Sara? Fatma, is this clear? Yes, sir. सर आप अच्छा, एक अब दफा इससे रिपीट कर दें. information मैं बस वो लाइक बस एक summarize कर जनरल दूं तो ओवरव्यू दे दे, हाँ समराइज बस कर ये दें. कि हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है that's like acting like a tiny magnet. ठीक है, because it has odd number of neutrons. So it's which is why Okay, kind of lagging on this side. I'm gonna refresh. अच्छा. So आवाज आ रही है सारों को? Yes. अच्छा, मैं फिर से रिपीट करो. हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है ना that's acting as a tiny magnet. ठीक है, and the magnet would by default align with the external magnetic field. I mean you place the molecule in a very powerful external magnetic field, and all the hydrogen protons are going to align with the external magnetic field. ठीक है, these are magnets. That's what magnets do. ठीक है, that's what a compass needle does. It by default aligns with the external magnetic field. So all of them are going to align with the external magnetic field. But then what happens is, okay, when you make them energetic, when you give them radio frequencies,
and there's a transmitter over here that is transmitting these radio frequencies. All these hydrogen protons, they gain energy. When they gain energy, they become energetic and they're now able to oppose the external magnetic field. So energetic protons, they go into this opposing state where they start opposing, they become so energetic that they're now able to oppose this powerful external magnetic field. ठीक है, Avas, is this clear? Yes, sir. अच्छा अब इस और ये रेजोनेंस है, ठीक है, इट्स अ लो एनर्जी स्टेट एंड देन देयर इज अ हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है. सो और वही करते हैं एमआरआई स्कैनर्स. इफ समबडी हैज सीन, मैं पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ कि लेट्स से एन एमआरआई स्कैनर इज बेसिकली अ मैग्नेट, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये जब ह्यूमन बॉडी को करते हैं ना एमआरआई स्कैन, दैट्स बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग. इट्स लाइक दिस ह्यूज मैग्नेट, इट्स अ ह्यूज मैग्नेट, और आपकी बॉडी को इसके अंदर प्लेस करते हैं. व्हाट हैपेंस है इसके आपकी बॉडी के जितने भी हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स होंगे वो अलाइन कर जाएंगे, ठीक है. द सेम थिंग वुड हैपन. Let me share this. So the same thing, same concept would happen. All your protons are going to align with the external magnetic field, and then if you start making them energetic using radio waves, they would start opposing the external magnetic field. अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इसका फायदा क्या है. The thing is कि this resonance gives you a lot of information. ठीक है, one thing is that there's an energy gap, and remember, energy is always proportional to frequency. So if a hydrogen proton is going to resonate, the two energy states are going to have a very specific energy gap. यानी उसको एक बड़ी specific amount of energy चाहिए होगी to go into opposing spin. So it's going to absorb a very specific frequencies. ये नहीं है कि it's going to absorb any frequency. It's going to absorb energy at any frequency. So hydrogen protons, they absorb a very specific frequency जो कि उनकी energy gap के साथ match करता है. ठीक है, so it's not they're randomly absorbing any frequency. Energy is always proportional to frequency. So अगर उनको 10 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए ना, तो वो एग्जैक्टली उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे जो उस एनर्जी के साथ मैच करती है. तो दे एब्जॉर्ब अ वेरी स्पेसिफिक frequency, since obviously E energy is proportional to frequency. अब what does this energy gap depend on? The one that's shown on the screen. Factors that affect the resonant frequency. सर इसका यूज कहाँ पे होता है? नहीं, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी ना सारी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. एनालिटिकल टेक्निक्स जो है ना, वो बेसिकली मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है ना, कि हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है, ठीक है, उसकी एक पिक्चर खींचना है. अच्छा, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अभी हम यूज पे याद है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप. तो वो क्या फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द एनर्जी गैप. वन ऑफ द फैक्टर्स इज, वन वेरी ऑब्वियस फैक्टर इज कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना दूं, ठीक है, उसको डबल कर देता हूं, ठीक है, और भी ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स यूज करना शुरू कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स मच हार्डर टू गो इनटू अपोजिंग स्पिन, क्योंकि इतनी पावरफुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा कि उसको अपोज करने के लिए यू वुड नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी गैप जो होगा वो चेंज हो जाएगा दोनों के बीच में. दैट्स वन फैक्टर, ठीक है. बट दैट फैक्टर डज नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप खुद ही मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर रहे हो. So that's one of the factors, which is the external magnetic field or the strength of the external magnetic field. अच्छा, तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी अगर एक्सटर्नल, तो इट वुड बिकम मोर डिफिकल्ट टू रेजोनेट. So if you have a stronger magnetic field,
more difficult to go into opposing spin. मतलब प्रोटॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ेगा तब जाके वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे. So more difficult to go into opposing spin. And there's going to be greater delta E. Energy gap जो होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा. Which means there's going to be a higher frequency absorbed. क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सो तो वो जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स होंगे दे गोइंग टू एब्जॉर्ब अ मच हायर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये फैक्टर नंबर 1 है. ये फैक्टर क्लियर है सारों को? मूसा, रीशा, हसन, रियान, क्लियर है? अच्छा, सो दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो रेजोनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक्सट्रीमली पावरफुल कर दोगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा फॉर द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टू गो इनटू अपोजिंग स्पिन. अच्छा, the second factor is the one that's actually the one that's actually going to give you a picture of the molecule. The second factor is called the shielding effect, or it's also known as the chemical environment of the hydrogen protons. ये आपको ना उन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की के बारे में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे. शील्डिंग इफेक्ट, केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स. अच्छा, so what is this factor? ठीक है, the one that's the key to understanding the structure of a molecule. तो ये जो फैक्टर है ना, ये हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन था, अभी तक हम सोची जा रहे थे कि ये जो है ना ये अकेला आइसोलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. बट रिमेंबर कि द हाइड्रोजन प्रोटॉन इज उसके इर्द गिर्द और भी चीजें हैं. ठीक है, इट्स बॉन्डेड टू अदर थिंग्स. तो अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये उसकी अलाइन स्टेट है, राइट? तो दैट्स द अलाइन स्टेट. और ये अभी अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर इट्स कंप्लीटली एक्सपोज्ड. लेकिन हाइड्रोजन प्रोटॉन ना कभी भी अकेला नहीं होता. हाइड्रोजन का जो एटम होता है इट आल्सो हैज एन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट. सो देयर इज दिस इलेक्ट्रॉन दैट्स काइंड ऑफ hovering अराउंड इट. ठीक है, तो वो एक 1s ऑर्बिटल के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है. कभी वो किसी के साथ बॉन्डेड भी होता है. सो देयर इज दिस इलेक्ट्रॉन दैट्स अराउंड इट दैट्स शील्डिंग इट. अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, लिसन वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, द इलेक्ट्रॉन इज so the electron is kind of protecting the hydrogen proton. वो उस तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचने नहीं दे रहा क्योंकि रिमेंबर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक छोटी डायपोल्स होते हैं. ठीक है, so this is what the electron is doing, it's shielding the proton. अब अगर प्रोटॉन शील्डेड है, ठीक है, दिस प्रोटॉन राइट इन द मिडल, ठीक है, इफ दिस प्रोटॉन इज शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने ना सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को ना डिफ्लेक्ट करके साइड पे कर दिया. So the proton would experience less external magnetic field. So it experiences less. मतलब प्रोटॉन को पता ही नहीं लग रहा कि बाहर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी भी कि नहीं, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है इट्स प्रोटेक्टिंग इट. सो द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट रीचिंग द प्रोटॉन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर वो लेस करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस तो उसके लिए रेजोनेट करना बहुत आसान होगा. ठीक है, इट वुड बी इजियर फॉर इट टू go into opposing spin.
ठीक है, एनर्जी गैप जो होगा वो स्मॉल होगा। और अगर एनर्जी गैप स्मॉल होगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी, लोअर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। So the resonant frequency is going to be very low क्योंकि energy is proportional to frequency। तो इसके लिए resonate करना that would become very easy। ठीक है, मतलब आप रेडियो वेव्स दोगे तो वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू पिक द लोअर फ्रीक्वेंसीज क्योंकि उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा हुआ है उसने सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ना आगे पीछे डिफ्लेक्ट कर दिया। सो इज दिस आइडिया आल्सो क्लियर? इज दिस क्लियर? सारा कुछ तो अच्छा। सो द थिंग इज कि सो द थिंग इज कि द मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन अकेला नहीं फैल रहा। ठीक है, उसके इर्द गिर्द देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग इट। दे नॉट अलाउइंग द मैग्नेटिक फील्ड टू रीच द प्रोटॉन। अच्छा, वाइस वर्सा। अब ये जो शील्डिंग है ना दैट वुड वेरी। व्हाई वुड इट वेरी? इट्स गोइंग टू वेरी डिपेंडिंग कि वो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है ना वो किसके साथ बॉन्डेड है। ठीक है, सो यू गोइंग टू हैव ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। इधर हम एक रूल बना लेते हैं। रूल बना लेते हैं कि मोर शील्डिंग होगी, if there is more electron shielding, then obviously the proton is not going to experience a lot of magnetic field। और एनर्जी का आप कम होगा जिसका मतलब है the resonant field below, it would be a lot easier for the proton to resonate। ठीक है, ये एक रूल बना लेते हैं कि जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना उसके लिए आसान होगा अपोजिंग स्पिन में जाना, और उतनी वो लो फ्रीक्वेंसीज अब्सॉर्ब करेगा। अच्छा, so hydrogen protons can be bonded with many things। They could be bonded with atoms, like in what case, when will hydrogen protons? So when will H protons have less shielding? So an idea could be what if an H proton is bonded to a highly electronegative element like fluorine? So what would fluorine do? Fluorine उसके electrons को खींच के अपने साथ जोड़ लेगा, और it's going to pull all the electrons। मतलब हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, if this is the hydrogen proton and let's say this is the fluorine proton, so fluorine is very electronegative। So what would fluorine do? It's going to pull all the electron density away from hydrogen। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा that would get very strongly attracted or pulled towards fluorine। ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन खींच के ना अपनी तरफ ले आएगा। फ्लोरीन would have a very strong partial negative charge and the H would have a partial positive charge। But because of this, H का जो प्रोटॉन है ना वो एक्सपोज हो गया। और प्रोटॉन अगर एक्सपोज हो गया, it's going to be less shielded। So it's going to have very less shielding क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन खींच के ना दूसरा एटम अपनी तरफ ले गया, तो उसका प्रोटॉन जो है ना वो बीच में अकेला पड़ा हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली एक्सपोज्ड। सो इफ इट्स लेस शील्डेड और आप उसको ना एक पावरफुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो उस तक पहुंच जाएगी क्योंकि देयर इज नो वन हु इज प्रोटेक्टिंग इट, देयर इज नो वन हु इज डिफ्लेक्टिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इट एक्सपीरियंसेस more external magnetic field। So experiences more external magnetic field जिसकी वजह से it would be very difficult for it to resonate। So greater delta E, which means a higher frequency would be
So a higher frequency would be absorbed for resonance. अब इस डेटा के साथ ना you can actually figure out what the hydrogen proton is bonded to. ठीक है, every element is going to, मतलब हाइड्रोजन की जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज होगी तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो आप उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी स्टडी करके ना, अच्छा आप उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी स्टडी करके यू कैन फिगर आउट कि एज के साथ बॉन्डेड है और किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डेड है। So there could be cases where the hydrogen proton is has a lot of shielding, electrons उसके पास है, and the electron is protecting it. Or there could be cases that it could be bonded to highly electronegative elements, and those elements are pulling the electrons away, and the shielding completely changes. उसका electron ऊपर से हट जाता है और there's no one protecting it. उसको जब आप magnetic field के अंदर place करते हो, it's completely exposed, experiences a lot of magnetic field, and for this proton, it's very hard to resonate. So it's going to absorb a higher frequency. So is this idea clear? कि हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स होती हैं। ये क्लियर है? हसन, दुआ, इज दिस क्लियर? मुस्तफा क्लियर है? बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, सो सर्विस में सम दिस अप, ठीक है, क्विकली। ये हमने पढ़ा है कि जी हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो है वो रेजोनेट करता है। There is an aligned spin and there is an opposing spin. ठीक है, it can only go into the opposing spin if it's energetic. एनर्जी होगी तो वो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। And we talked about the energy gap being proportional to frequency, so it's going to pick or absorb a very specific frequency. And the factors that affect the resonant frequency is, the first one is the strength of the field itself, जो कि आप खुद कंट्रोल कर रहे हो। जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी एक्सटर्नल तो उतना मुश्किल होगा उसके लिए रेजोनेट करना। बट द अदर फैक्टर इज द शील्डिंग इफेक्ट, which is that the hydrogen proton is not alone. It has an electron that's protecting it, and the electron is going to shield it. But the electron is not always going to be there. Because the hydrogen in a molecule is usually bonded to other things. It could be bonded to a carbon atom, it could be bonded to an oxygen atom, it could be bonded to a fluorine atom. So, फिर मैंने example दिया कि जी if it's bonded to a highly electronegative element like fluorine, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे क्या होता है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। सो एवरी टाइम व्हाट हैपेंस इज, द बेसिक आइडिया इज, एवरी टाइम व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है ना, दैट्स कभी उसकी शील्डिंग थोड़ी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज बॉन्डेड टू। और अगर उसका जो अरेंजमेंट है ना एटम्स की अराउंड इट वो हल्की सी भी चेंज होगी ना, देन इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी डिफरेंट। ठीक है, सो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज वेरी सेंसिटिव टू व्हाट द हाइड्रोजन प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू। हल्की सी भी चेंजेस होंगी ना, थोड़ी सी भी माइन्यूट सी भी चेंजेस होंगी, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वुड चेंज। ठीक है, द शील्डिंग अराउंड द हाइड्रोजन प्रोटॉन इज गोइंग टू चेंज। सो आई एम गोइंग टू डू एन एग्जांपल के, ठीक है, आई एम गोइंग टू पिक द फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जिसकी हम कर रहे थे। सो there was this ethanoic acid molecule that we were talking about initially. अब एथेनोइक एसिड में ना सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन लेट्स से अलाइंड स्पिन, लो एनर्जी स्टेट। मुझे बताओ कि इनमें से कौन से हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं जिनकी शील्डिंग जो है ना वो एग्जैक्टली एक जैसी है। आई मीन द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इज एग्जैक्टली द सेम। कौन गेस कर सकता है? वैसे ही बता दे भाई। CH3 वाली। ठीक है, क्योंकि और ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन इज टोटली डिफरेंट क्योंकि इट्स बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इसकी जो केमिकल एनवायरनमेंट है दैट्स डिफरेंट। ठीक है, मैंने कहा बॉन्डिंग के अंदर जरा सा भी फर्क होगा ना तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अच्छा, these three are exactly the same. एक तो वो एक ही उसी कार्बन के साथ बॉन्डेड है सारे के सारे, तो जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग होगी इसकी वही एग्जैक्टली इसकी होगी, वही एग्जैक्टली इसकी। they are going to have the same electron shielding, which means they're going to resonate at exactly the same frequency. तो तीनों हाइड्रोजन जो है ना, इन तीनों हाइड्रोजन की शील्डिंग में कोई फर्क नहीं है। they're going to experience the same magnetic field, and because they do that, the energy gap would be the same, and hence the resonant frequency would be exactly the same. So hypothetically speaking, let's call that F1. ये तीनों ना F1 पे रेजोनेट करेंगे। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, दिस इज उसकी केमिकल बॉन्डिंग जो है दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री।
तो उसकी जो शील्डिंग होगी वो भी ऑब्वियसली कंप्लीटली डिफरेंट होगी, तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वुड आल्सो बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो उसको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू देता हूँ f2। तो रेडियो स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्प्शन चल रही होगी ना, दैट वुड लुक लाइक दिस। ये लेट्स से ये फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है और ये एब्जॉर्प्शंस हो रही होंगी। सो देयर इज गोइंग टू बी एब्जॉर्प्शन एट f1 एंड देयर इज गोइंग टू बी एब्जॉर्प्शंस एट f2। अच्छा, और कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही होगी? Because three hydrogens are absorbing F1, I mean they're all absorbing F1 to resonate. इसका मतलब है F1 की जो absorption होगी ना, that would be 3 times compared to this one. तो इसका जो height का ratio होगा ना, that would be, तो ratio would be कि F1 का जो ratio होगा that would be 3:1. ठीक है, so height, what does the height give you? Height tells you or gives you an idea of the hydrogen protons in the same chemical environment. So it provides you information about the number of protons in same chemical environment. और height जो है ना, that's basically absorption। ठीक है, कि कौन सी frequency कितना absorb हो रही है, the about number of protons in same chemical environment। तो जब आप एथेनोइक एसिड का एनएमआर स्पेक्ट्रम करोगे ना, एनएमआर स्पेक्ट्रम उसका लोगे, तो आपको ना इस तरह का ग्राफ बनेगा कि टोटल 2 फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो रही होंगी। 2 फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि ऑल्दो उसके अंदर 4 हाइड्रोजन है, but 2 frequencies would tell you, what information would that tell you? It would tell you कि there are exactly 2 chemical environments। इसका मतलब है या तो 3 हाइड्रोजन और एक ही तरफ बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन किसी और तरीके से बॉन्डेड है, या फिर 2 हाइड्रोजन एक तरह से बॉन्डेड है, लेकिन फिर हाइट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि 3 हाइड्रोजन जो है ना, क्योंकि रेशो है 3:1, तो दैट मीन्स कि इफ यू हैव 4 हाइड्रोजन इन टोटल, 3 of them are bonded in exactly the same way and 1 of them is bonded in a different way। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है सारों को? शमीन, नबीहा, मुस्तफा, ये क्लियर है? हसन क्लियर है? अच्छा देन, तो इसी के ना, अभी हम इसी के ऊपर ना रहते हैं, इसके 1-2 और एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मोर डिटेल वुड फॉलो। ठीक है, तो भी बिल्कुल, सो लेट्स थिंक ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर बॉन्डिंग के अंदर ना हल्का सा भी फर्क है ना, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो लेट्स थिंक ऑफ, तो ये मैं थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा हूं। ठीक है, अब कोई वैसे गेस करके बता देंगे कितनी कितनी केमिकल एनवायरनमेंट्स है इसमें, एंड फोकस ऑन द हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन तो रेजोनेट ही नहीं करता। अच्छा, फर्स्ट थिंग, लेट्स फोकस ऑन दीज 3 हाइड्रोजन। हमें यहां तक तो आइडिया हो गया कि ये 3 हाइड्रोजन जो है वो एग्जैक्टली सेम है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट है, बट आर दे एग्जैक्टली सेम एज दिस वन? क्योंकि वहां पे भी 3 हाइड्रोजन है, वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, बट इज दैट एग्जैक्टली द सेम एनवायरनमेंट और नॉट? ये थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है। वैसे टाइप करके बता दे कि क्या होगा इसका। रियान, क्या होगा? जी सर। मैंने कहा ये जो वो बना हुआ है कि ये एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, ये 3 हाइड्रोजन और जी ये 3। सेम है। अच्छा नहीं, मैं इसी में स्ट्रेस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भी फर्क होगा ना, तो इन्वायरमेंट में हल्का सा फर्क होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस CH3 इज बॉन्डेड टू CH2, दिस CH3 इज बॉन्डेड टू CHOH, तो उसका इफेक्ट ना इन हाइड्रोजन के ऊपर होगा। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, मिलते जुलते, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, व्हिच मींस कि अगर ये फ्रीक्वेंसी F1 के ऊपर रेजोनेट कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी लेट्स से F2 के ऊपर रेजोनेट कर रहा होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम।
सो रिमेंबर कि उसकी जो बॉन्डिंग है ना, उसके जो नेबरहुड में एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर्स है, this CH3 is not exactly, not 100% exactly the same as this CH3. ठीक है, this CH3 is bonded to CH2, this CH3 is bonded to CHOH. तो मतलब उसकी बॉन्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी फर्क है, बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो मैंने कहा था कि अगर हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स की केमिकल एनवायरनमेंट में हल्का सा भी फर्क पड़ेगा ना, किसी भी वजह से, उसके नेबरहुड में बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर की वजह से, the resonant frequency is going to be different. So you're not going to treat them as the same hydrogen protons. ये किसी और फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेंगे, ये किसी और फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेंगे। सिमिलरली दिस CH2 इज डिफरेंट। ये दोनों हाइड्रोजन्स बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। द टू हाइड्रोजन्स ओवर हियर दे गोइंग टू रेजोनेट। इन दोनों की आपस में जो एनवायरनमेंट है ना, दैट्स एग्जैक्टली द सेम, बट देयर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, क्योंकि यहाँ पे CH3 था, बॉन्डिंग डिफरेंट थी, यहाँ पे भी CH3 था, सो मतलब दिस इज डिफरेंट कंपेयर टू द अदर टू। Then you have this one, OH is completely different. तो ये let's say frequency F, इसको F3 होना चाहिए था, ये frequency F4 पे resonate करेगा, and this one would resonate at frequency F1, ठीक है। So you have to be careful कि कौन से, अगर हल्का सा भी फर्क होगा ना environment के अंदर, तो you're going to treat them as different hydrogen protons. You're going to treat them, you're going to consider the fact कि they're going to resonate at different frequencies. एक और एग्जांपल कर लेता हूँ कि अच्छा, now let's say I have this molecule over here, ठीक है, बस 2-3 मिनट में खत्म करो क्लास, ठीक है, होपफुली किसी की क्लास हो। अच्छा, लेट्स से I have this molecule। अब कोई मुझे बताए कि ये जो CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन्स और यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है, डू दे हैव द सेम एनवायरनमेंट और उनके बीच में अभी भी थोड़ा सा फर्क है? सेम है सर, सेम होएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी जो बॉन्डिंग वगैरह, मतलब आपने इस हाइड्रोजन प्रोटॉन का ना सिर्फ साथ वाला एटम नहीं देखना, उसके पूरे उसके साथ जो बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर चल रहा है ना, वो सारा देखना है। So these hydrogen protons and these hydrogen protons are now exactly the same. ये दोनों मिलके ना, ये 6 अब हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होंगे, they have the same environment, यानी same frequency, let's call it F1। ये OH obviously उनसे different है, that's going to be resonate at frequency F2, and this one वो बाकी सारों से different है, so this would resonate at F3, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखते हैं, हल्का सा भी अगर बॉन्डिंग उसकी जो नेबरहुड में बॉन्डिंग वगैरह ना, उसमें थोड़ा सा भी फर्क है ना, आपने कहना है कि वो हाइड्रोजन प्रोटॉन ना किसी और फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा, ठीक है। सो सर दिस ये इज, हाँ सर जी, ये जो पिछली डायग्राम है सर, इसमें आपने F1 2 बार लिखा है, नहीं सर वो वो F5 में होना चाहिए वो वाला। वो F5 होगा। अच्छा, मैं इनके वो ग्राफ बना देता हूँ दोनों का, कि कितने होंगे F1 और F2, वो 3-3 हाइट होगी, क्योंकि 3-3 हाइड्रोजन है, उनकी रिलेटिव हाइट सेम होगी। फिर F3 कितना है, F3 2 होगा, F4 और F5 जो होगा उनकी हाइट जो होगी 1-1 होगी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज में हाइपोथेटिकल F1 F2। तो आपको ना 5 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मिल रही होंगी, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 2-1-1। और इसका ग्राफ किस तरह आ रहा होगा, इसका ग्राफ आ रहा होगा, इट्स गोइंग टू बी 6 हाइड्रोजन जो है वो तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे, उसको F1 कहा है, ठीक है। सो दिस गोइंग टू बी दिस ह्यूज पीक व्हिच वुड बी 6 हाइड्रोजन्स, एंड और फिर एक एक की पीक होगी, ठीक है। ये नहीं 6 क्यों लिखा नीचे, तो फ्रीक्वेंसीज है F1, this is F2, this is F3, so this is 6-1-1। अच्छा, खाली इसी इंफॉर्मेशन से ना आप ना स्ट्रक्चर फिगर आउट कर सकते हो। मतलब कोई आपको कह देना कि C3H7OH है, आप सारे वो बनाओगे उसके आइसोमर्स, और फिर देखोगे किस पे 6-1-1 का रेशो आना चाहिए, वो यही होगा, दैट वुड बी द ओनली वन। क्योंकि OH अगर किसी और पे लेके जाओगे ना, नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स वुड चेंज, ठीक है, और नंबर ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज वो इंक्रीज हो जाएंगी, या कम हो जाएंगी, या ज्यादा हो जाएंगी। तो इससे फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में?
Is this clear to everyone? Musa, Ariba, Yes, Yan? sir. Yes, I sir. thought this was supposed to be the last chapter and the easy chapter. Why is it so difficult? This one is probably the most difficult one. But it's Uh, not the most difficult one actually. It's the most conceptual one. It's the most it's like a jigsaw. I mean, end में जब question करेंगे, it's like solving a puzzle, and which is why it's probably the most interesting chapter. लेकिन दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है? इसमें रटा वाला पार्ट कम है, तो मतलब that makes it easy. लेकिन थोड़ा conceptual ज़्यादा है, ठीक है? या ऑर्गेनिक ज्यादा मुश्किल है सर इससे। हाँ, ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है सर इससे। ऑर्गेनिक मुश्किल है ना, उसमें रटे लगाने पड़ते हैं ना, वो पार्ट ज्यादा मुश्किल है। ये समझ आ जाए ना तो फिर इंटरेस्टिंग भी है, और फिर क्योंकि ऑब्वियसली आपको एवं में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इससे फिर, ठीक है? अगली क्लास में प्रेजेंट लिख लो, जाने से पहले सारे प्रेजेंट लिख लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.